तो जब केतु वहाँ पर आ जाएगा तो वो आपको डिससेटिस्फाई कर सकता है, ये घर थोड़ा छोटा सा लग रहा है, फैमिली बढ़ रही है, एक काम करते हैं बड़ा घर ले लेते हैं। 8th हाउस का ये 8th मुझे नहीं हाउस पता था। हम इन लॉज को भी देखते हैं। ओके। तो अगर राहु वहाँ पर आ गया, और राहु हमारे इन लॉज को भी डिटेक्ट करते हैं, तो मे बी आप ये देख सकते हैं कि आपकी इन लॉज से कुछ अनबन हो गई है, या इन लॉज का थोड़ा इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गया है, उससे आप मतलब इट इज़ अफेक्टिंग योर लाइफ, इट इज़ मेकिंग द लाइफ अ बिग ट्रबल फॉर यू। तो मून एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत सारी आप लाइक मेनी पीपल ड्रिंक कोकोनट वाटर इन द मॉर्निंग, आपने देखा होगा। कोकोनट वाटर अगेन मून है, और मून जो है वो राहु को काम करता है। Welcome back to Be Beyond Blissful. Today we have yet again astrology podcast session, and it's with Ishita. I think last time we left it on a very, I would say, unfinished note, and astrology is such a vast science that it cannot be, we cannot talk about it just in an hour or 2 hours, I think. So welcome back, Ishita. Thank you. Thank you for having me back. Thank you so much for coming. It's always a pleasure talking to you, and before the session also we were talking. I think we both like to talk a lot. Yes. So Mutual. that's a mutual connection we have. So let's talk about other aspects of astrology. Last time I think we touched base a little bit on basic astrology, what it is, and mainly you walked us through the transit of Jupiter and what it is for each of the horoscope, each of the Rashi sign. Zodiac signs, We yeah. did that. So this time round, Ishita, I want to dive a little bit deeper because I'm always very intrigued. Although I would say that I'm not a hardcore astrology believer or a follower. I would say believer, though I wouldn't say I am a believer for sure, but not a follower. My grandfather used to follow a lot, and he was a true believer as well as a follower. So that's where my curiosity always comes from, that he was a really learned and very sorted person, and if he was following astrology, there must be something to it. So lately I read there are too many, and I think too many videos are there about it online, that there are too many planets in one sign, or too much of things are happening in the universe, which is obviously affecting the earth. That's why too many wars and restlessness among the people. So Stressful. Stressful situation. take it away. Okay. Yes, so basically in past few months, the planetary positions were in such a way that there were 5 planets in Pisces, and that was for a while. So that's why there was so much of stress all over. Everyone was stressed, wars and everything, so many things were happening. But now things are a little better, and they will get better day by day, because now Rahu has moved to Aquarius and Ketu has moved to Leo. So it is definitely good for Pisces, because everything was there in Pisces at the moment. But now, of course, the transit has happened, and everyone is going to be getting affected by the transit. And again, as we discussed about Jupiter last time, that how every moon sign gets affected and every person gets affected, but this is something different with Rahu and Ketu. So Rahu Ketu. I think Rahu and Ketu के regards में बहुत लोग डरते भी हैं. They say कि इसका राहु खराब है, Rahu does this, Rahu does that. And जितनी knowledge मुझे है astrology की, Rahu is playing with your mind all the time. It's delusion, illusion, whatever you want to call it. And restlessness is Rahu. And so Rahu Ketu ke transits, or how is it going to affect and settle? If we call it settle, wars are still going on. I don't think कुछ settle हुआ है. I mean, yeah, there was a big conflict between India and Pakistan, and
which is still going on, maybe not at that scale, but they have not resolved the conflict. And talk about other wars in the world, there are two major wars going on in the Middle East. तो settle तो I don't think कुछ हुआ है, but I'm sure these planets, they have a role to play in it. So walk us through that. ओके सो लाइक अभी एग्जैक्टली मैं वॉर्स का तो अभी आपको प्रिडिक्शन नहीं बता सकती कब तक चलेगा, क्या सिचुएशन रहेगी, बिकॉज उसके लिए आपको वॉर के लिए मतलब कंट्रीज की कुंडली बनानी पड़ेगी, Of जो कि अभी course. हम कंट्रीज की तो कुंडली यहाँ पे बना नहीं सकते हैं. तो इसलिए आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि प्लैनेट्स कैसे हमें हमें पर्सनली या फिर कैसे एक इंडिविजुअल को कैसे अफेक्ट करते हैं. Yeah, exactly. I mean, हाँ, that's what I wanted to exactly. know कि on a personal level, like for a everyday man, अब जैसे हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, of course यहाँ पे कोई war नहीं है, या say somebody is in US, या restlessness तो है लोगों में. I mean, वो तो every guest of mine, we talk about it, whether we call it, emotional imbalances, कुछ ना कुछ किसी के साथ issue है. So that's there. So you think there's a role to play, like astrology does play a big role in that? It does play because like as you said, Rahu plays with your mind. It ये makes you true है, overthink. मैं सिर्फ बोल रही थी. नहीं It's नहीं, true. इट इज ट्रू बिकॉज राहु आपके माइंड के साथ खेलता है. आपको जो इतनी ओवर थिंकिंग होती है वो राहु की वजह से होती है. राहु अब जैसे अब हर अलग अलग असेंडेंट्स में अलग अलग ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह पे गया है. जैसे एज आई सेड कि आई मीन अलग अलग जगह से गया है, मतलब वो है तो भी एक्वेरियस में, बट एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इंडिविजुअल चार्ट. तो हर किसी का असेंडेंट, दैट इज द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस, अलग होता है. एंड उसके हिसाब से आपके सारे प्लैनेट्स आपके हॉरोस्कोप में रहते हैं. तो आप अपने हॉरोस्कोप में आप जब देखेंगे जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, दैट मीन्स उस हाउस में राहु आ गया है. और जहाँ पर आप 5 नंबर देखेंगे अपने हॉरोस्कोप में इंडिविजुअल, वहाँ पे केतु आ गया है. तो अब उस हाउस के, बिकॉज 12 हाउसेज होते हैं, हर हाउस का हमारा अलग एस्पेक्ट होता है. 11th house का क्या मीनिंग? 11th हाउस में नहीं गया है, 11th राशि में गया, एक्वेरियस में गया है. ओके. तो जो एक्वेरियस वाले हैं या फिर जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर राहु जिनके 4th हाउस में आया है, तो अभी उनके मन में डिलेमा आ गया होगा, या तो हम नई गाड़ी खरीद लेते हैं, या फिर हम घर में कुछ रेनोवेशंस करा लेते हैं, या फिर अरे कुछ नहीं तो चलो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगा लेते हैं. तो इस टाइप के थॉट्स, रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. एंड राहु की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ना बड़ा सोचता है. आप छोटा नहीं सोचोगे, आप बड़ा सोचोगे. एंड ऑल्सो सब कुछ मैग्नीफाई कर देता है. एग्जैक्टली, मैग्नीफाई कर देता है. एंड अनऑर्थोडॉक्स करोगे. शायद आपके घर में किसी ने वो गाड़ी कभी सोचा नहीं होगा लेने का, बट आपको तो वही वाली गाड़ी लेनी है. तो दिस इज समथिंग जो राहु करता है. एंड केतु ऑन दी अदर हैंड वो आपको डिटैच कर देता है चीज़ों से. मतलब आपको डिससेटिस्फाई भी करता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ा सा. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर केतु आपके 4th हाउस में आ जाए, विच इज 4th हाउस में मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 4th हाउस हमारा घर होता है, हमारी गाड़ियाँ होती हैं, हमारा मतलब घर जहाँ पे जहाँ पे हम रहते जहाँ हैं, पर नॉट हम आवर रह रहे हैं. फैमिली बट आर फैमिली ऑल्सो, Okay. मतलब फैमिली भी है, हमारा फैमिली है, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारा प्रॉपर्टी है, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें हम 4th हाउस से देखते हैं. तो जब केतु वहाँ पर आ जाएगा तो वो आपको डिससेटिस्फाई कर सकता है. ये घर थोड़ा छोटा सा लग रहा है, फैमिली बढ़ रही है, एक काम करते बड़ा घर ले लेते हैं. रिलेशंस भी खराब कर सकते रिलेशनशिप्स भी अलग अलग हर जगह के जैसे रिलेशनशिप्स हैं. अब जैसे 4th हाउस आपकी मदर का हाउस भी होता है. तो अब आप देखोगे अगर राहु केतु कुछ भी आएगा तो आपकी मदर की लाइफ अफेक्ट होगी उससे. अब अगर केतु आ गया है तो केतु से शायद ऐसा हो कि आप मदर से थोड़ा डिटैच्ड फील करो, डिससेटिस्फाई फील करो. जैसे आपको लग रहा है अरे मम्मा इतना इंटरफेयर क्यों कर रही है मेरी लाइफ में, आपको ऐसा फील हो सकता है थोड़ा सा. दैट राहु अगर है वहाँ पे, तो राहु में आप अटैच भी सबसे ज्यादा अपनी मॉम से हो जाओगे. हैं. तो राहु इज अटैचमेंट, केतु इज डिटैचमेंट, ऑपोजिट है. एंड है ये दोनों भाई, तो इसलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है. और इसीलिए आप जब देखेंगे कुंडली में हमेशा राहु और केतु ऑपोजिट होते हैं. अगर आप किसी कुंडली में राहु केतु एक साथ देख लो, हॉरोस्कोप गलत है.
ओके क्योंकि ऐसा कोई हॉरोस्कोप नहीं होगा जिसमें राहु और केतु साथ में आएंगे। ट्रांजिटिंग प्लैनेट की अलग बात होती है, ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स में आ जाते हैं राहु और केतु साथ में, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी दे देते हैं। मतलब ऑब्वियसली वो एज पर द हॉरोस्कोप होता है, उसके और भी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन राहु और केतु हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं। ओके। तो आपको आपने कहा कि किसी के 4th हाउस में आ जाए, अगर कैन वी वॉक थ्रू द हाउसेस, इज इट ओके कि अगर किसी के 1st हाउस में आता है राहु तो उसके को क्या फील हो रहा है, सो या देख, केतु 1st हाउस में आता अगर फर्स्ट हाउस में आपके राहु आता है सपोज, तो आपको लगेगा कि आप अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओगे, यू नो, कि अरे वाह मैं तो सबसे अच्छा लग रहा हूँ, वाह आज मैं है, या ही। मुझे अच्छा लगना चाहिए? हाँ नहीं, आपको वो सेल्फ ऑब्सेस कर देगा। अच्छा। आप शायद अपने बाल थोड़े अलग से स्टाइल करने लग जाओ, और मतलब आपको बेसिकली आपको अपने आप से ना बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, आप यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। जैसे वो एक करीना कपूर का बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो वही वाला राहु आपको इफेक्ट देता है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ या मैं अपना फेवरेट हूँ। एंड अगर सो केतु आ जाएगा तो तो अपोजिट हो केतु आ जाएगा। जाएगा तो आप डिटैच हो जाओगे। आई ठीक डोंट केयर है, हाउ आई लुक। आई डोंट केयर, हाँ अरे छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, चलो ऐसे ही चल लो। लेकिन ऑन द अदर हैंड केतु फर्स्ट हाउस में जब आता है ना, आपको कंफ्यूज कर देता है, मतलब आप इन जनरल कंफ्यूज पर्सनालिटी बन जाओगे। आपको समझ नहीं आ रहा, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, आपको मतलब ऐसा होगा कि आप किसी का यू नो यू वांट समवन्स हेल्प बेसिकली टू टेक एनी डिसीजन। तो इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है केतु वहाँ आके, बिकॉज केतु इज कंफ्यूजन ऑल्सो। अगर किसी के जैसे 7th हाउस में राहु केतु आ जाता है, आई थिंक 7th हाउस इज आपके स्पाउस का हाउस होता है, यस। तो उनको कैसे इफेक्ट्स देता है? सो बेसिकली जैसे अगर राहु आ जाएगा, तो एज आई सेड राहु इज अटैचमेंट बट डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर से, आप अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, लेकिन आप डिससैटिस्फाइड भी उनसे होंगे। आपको लगेगा कि कुछ अधूरापन है इस रिलेशनशिप में, यू नो यू फील दैट मिसिंग थिंग इन द रिलेशनशिप। ऑन द अदर हैंड अगर केतु आ जाए, तो केतु डिटैच कर देता आपको पार्टनर से। अब आपको वो सेपरेटेड फील होगा पार्टनर के साथ, एक हस्बैंड वाइफ वाला जो रिलेशनशिप होता है, मे बी यू विल फील द लैक ऑफ इंटीमेसी बिटवीन द टू ऑफ यू। मे बी यू कैन फील कि अब हमारी बात नहीं हो रही है, जैसे वो बोलते हैं ना रिलेशनशिप में स्पार्क खत्म हो गया है, तो दैट इज समथिंग रिलेटेड विद केतु। तो ये तो बहुत मोमेंटरी है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग जो लास्ट करेगा। एक्चुअली इफ वी कैन टॉक अबाउट इट, यू सी दीज डेज के डिवोर्स कितने ज़्यादा होते हैं, लोग बहुत जल्दी, पेशेंस ख़त्म हो चुकी है। लाइक जैसे हम कहते थे हमारी दादी नानी में पेशेंस होती थी, आजकल हम लोगों में नहीं है। तो इवन फादर्स, मेल्स की भी बात करें तो उनमें भी इतनी पेशेंस नहीं है, एवरीबडी जस्ट वांट्स टू मूव ऑन। अगर यू नो तभी बोलते हैं शायद कि वक्त ख़राब आ गया है, आप पेशेंस रखो, आप वेट करो एंड गिव थिंग्स अ लिटिल टाइम, दे मे सेटल। तो ऑन दैट नोट आई थिंक लर्निंग फ्रॉम हियर इज दैट इफ़ यू एवर सी कि आपके पार्टनर में कोई चेंजेस आ रहे हैं और यू फील आप में कोई चेंजेस आ रहे हैं, यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू योर पार्टनर, मे बी डोंट टेक इट टू सीरियसली, just let it be, and you know just be there, just hang in there, it's okay, nahi ho raha, don't go and rush, kyun nahi ho raha, I need to find somebody, this person is not good enough for me anymore, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। नहीं आई एग्री, बट जैसे अभी ये बताया ना मैंने, ये ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स है, तो ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स आफ्टर 18 मंथ्स मूव हो जाएंगे। तो वही एग्जैक्टली, तो वो जो आते हैं प्लैनेट्स, वो आपका पेशेंस टेस्ट करने के लिए आते हैं। ठीक है, और अब जैसे आजकल आप बात कर रहे थे, डिवोर्स का रेट बहुत बढ़ गया है, तो क्यों बढ़ गया? बिकॉज लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, ये फील कि अरे अच्छा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, वील जस्ट लीव द पार्टनर एंड मूव ऑन इन लाइफ। बट एक्चुअली ये चीज़ हमने मतलब कभी देखी नहीं है, या हमारे जैसे बोलते हैं ना हमारी संस्कृति नहीं है, हमने कभी डिवोर्स इतना रेट देखा नहीं था। बट बिकॉज विद टाइम, विद सोशल मीडिया, आई फील विद सो मेनी इन्फ्लुएंसेस, लोगों को लगता है अरे हम लोग वी आर नॉट फीलिंग आवर सेल्फ इन द रिलेशनशिप एंड देन वी कैन मूव ऑन, बट दैट इज़ नॉट राइट। वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन इट। तभी हम बोलते हैं कि अभी जैसे राहु और केतु की अगर हम बात ही कर रहे हैं, तो उसमें रेमेडी जो देते हैं हम, वो एक दोनों के लिए एक बहुत कॉमन रेमेडी है, वो है मेडिटेशन।
Yeah. right? Why meditation? Because it will calm you down. आप थोड़ी देर 5 minutes बैठ के ध्यान लगाओ, क्या हुआ, क्या गलत बोल दिया. You know, it's not always that your spouse is wrong. It can be yourself who is the red flag in the relationship. एब्सोल्युटली नहीं, मैं वही आपको बोल रही थी कि समटाइम्स इफ यू थिंक कि ओ आई एम नॉट फीलिंग राइट विद दिस पर्सन, आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, ये मुझे इनसे बात करने का मन नहीं कर रहा है, सो आई शुड नॉट गो आउटसाइड एंड लुक फॉर समवन एल्स और बी इन अ रश टू लीव द रिलेशनशिप एंड रन. आई थिंक जस्ट हैंग इन देयर. जैसे आपने बोला मेडिटेशन करो, ब्यूटिफुल. आई टोटली बिलीव इन इट कि यस, मेडिटेशन से बहुत कुछ रिजॉल्व होता है. इट मे साउंड पहले के टाइम पे मे बी प्रॉब्ली मेडिटेशन वाज फॉर पीपल हु रियली वर स्पिरिचुअल एंड हु वर फॉलोइंग अ सर्टेन पाथ. इन टुडेज वर्ल्ड मेडिटेशन इज़ अ मस्ट फॉर एवरीबॉडी. जैसे एक टाइम पे हम कहते थे वॉक करना सबको बहुत ज़रूरी है, या हम कहते थे पानी बहुत पियो. आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड मेडिटेशन इज़ द मस्ट. एंड ऑफ स्टोरी. 100%. I think it is really overrated. Sorry, underrated. Because meditation is underrated. And like everyone should perform meditation at least 5 minutes every day. Because it will definitely, give that energy to you. It will let your body relax for a while and then do other stuff which you can do in that time. तो मैं थोड़ा मेजर हाउसेस के बारे में बात करने लगी हूँ यहाँ पे. 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ डेथ, इज इट? हाउस ऑफ डेथ भी बोल सकते हैं, लॉन्गेविटी देखते हैं उससे. अच्छा, लॉन्जिविटी बेसिस से देखते हैं. exactly. तो 8th हाउस में राहु केतु का आने का क्या मतलब है? सो राहु केतु अकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा डिटेक्ट करता है. मतलब अगर आप केतु है तो अगर आपके पास केतु 8th हाउस में, लाइक केतु अगर 8th हाउस में आता है तो आप अकल्ट साइंसेस से भी अट्रैक्ट होने लगते हैं. You feel like reading about occult, you feel like knowing about occult sciences. It's not only astrology, occult में काफ़ी सारे आते हैं. न्यूमरोलॉजी आता है, रेकी हीलिंग आता है, क्रिस्टल हीलिंग आता है, उसके अलावा पामिस्ट्री, लाइक वट एवर समथिंग रिलेटेड विद अकल्ट साइंसेस. तो आप वो सब सोचने लग जाएंगे. उसके बाद राहु अगर वहाँ आता है तो राहु 8th हाउस, एक हम एस्पेक्ट भूल गए, वो होता है इन लॉज. ओके, 8th हाउस, ये मुझे नहीं पता था. हम इन लॉज को भी देखते हैं. ओके. तो अगर राहु वहां पर आ गया, और राहु हमारे इन लॉज को भी डिटेक्ट करते हैं. तो मे बी आप ये देख सकते हैं कि आपके इन लॉज से कुछ अनबन हो गई है, या इन लॉज का थोड़ा इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गया है. उससे आप मतलब इट इज़ अफेक्टिंग योर लाइफ, इट इज़ मेकिंग द लाइफ अ बिग ट्रबल फॉर यू. सो थोड़ा ये देख सकते हैं हम लोग उस पर. ओके. एंड what about 10th house? 10th house is, I think, your growth. 10th house is your career, basically. Career. Your public image. So basically राहु वहाँ पर आ जाए. वैसे जो मेरे गुरुजी हैं वो बोलते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में. Oh wow. Really? Exactly. तो बोलते हैं कि अगर राहु वहाँ पर आ जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. It will give you extraordinary ideas, as we discussed कि राहु is expansion, it is unorthodox thinking. तो आपके करियर में अगर आप यू आर ऑलरेडी इन अ प्रोफेशन, मे बी यू विल स्टार्ट गेटिंग आइडियाज रिलेटेड टू बिजनेस स्ट्रैटेजीज. आप ऐसी स्ट्रैटेजीज बोल रहे हो बिजनेस मीटिंग में जो आज तक कभी डिस्कस नहीं हुई. एंड स्पेशली विद द AI इन टू दिस बिजनेस, इतना ज़्यादा AI आ गया है आजकल. तो यू नेवर नो, क्या पता राहु आपको एकदम AI का इतना अच्छा एग्जाम्पल कोई स्ट्रैटेजी दे दे कि आपकी पूरी बोर्ड मीटिंग में आपकी वाहवाही हो गई है वहाँ पे कि हाउ कम यू गॉट दैट. तो राहु वहाँ पे ये कर देता है. आपको एक्सपैंड करेगा, करियर एक्सपैंड कर देगा, और आपकी बिजनेस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिल सकते हैं. सो दैट इज़ समथिंग जो राहु वहाँ जाके करता है. And talking about Ketu, so again Ketu, dissatisfaction, detachment. तो आप अपने काम से डिटैच हो जाओगे, मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, या यू वांट टू रिलैक्स, या फिर ऐसा लगेगा कि अरे ऑफिस क्यों जाना, वर्क फ्रॉम होम मिल जाता. घर बैठ के बेड पे बैठ के काम करेंगे. सो ये ऐसे कर देता राहु केतु 10th हाउस में आके. आपने AI की बात करी. I think AI is Rahu. Yes. So we are living in the world of like era of Rahu Yes, right now. yes.
सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, it's illusion, like कोई, it's not a real tangible person, it's all virtual. Yes. So it's very Rahu dominated. What about 12th house? Okay, so 12th house is very good for people who want to go abroad. So basically 12th house हमें बताता है हमारे 12th house also talks about meditation. It is moksha. It is your foreign settlement. It is also hospital. It is also jail. It is also jail. Yes. Oh, okay. So when Rahu comes there, हाँ. it can also send you to hospital. It can also send you to jail. But Wow. it can also send you to a foreign country. So you will see if Rahu is there, you might see long travels, or you're going foreign, or you get your permanent residency if you're staying in a foreign land. So these are some aspects of Rahu. Again, you know, with the jail and hospital, also for permanent residency, we just can't say if Rahu is there. We have to look at other planetary positions as well. But mainly, you might get some news related to either of these things. और ज़रूरी नहीं कि आप हॉस्पिटल खुद से जा रहे हो, you know, कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई. इट कुड बी दैट समवन एल्स इज हु इज़ इन द हॉस्पिटल और आपको हॉस्पिटल उनको देखने के लिए जाना पड़ जाए, तो ऐसा भी होता है. केतु ऑन द अदर हैंड, केतु व्हेन कम्स देयर, केतु आपको मतलब केतु के लिए कोई अच्छी जगह हो गई, मोक्ष, यू नो, दैट स्पिरिचुअल, तो आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में चढ़ने लग जाते हो. एक्स्ट्रा मतलब अगर आप 10% जाने लगते तो आप 20% जाने हाँ, एग्जैक्टली, वो आपको स्पिरिचुअल लाइन में लेके जाएगा अगर केतु वहाँ पर आ जाए तो आप और स्पिरिचुअल बातें करने लग जाओगे, मे बी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुनने लग जाओ. सो समथिंग रिलेटेड विद स्पिरिचुअल, कुछ तो आपकी स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी केतु कमिंग इन द 12th हाउस. तो यहाँ पे मुझे अपने तो 2 फायदे दिख रहे हैं. Okay. एक तो ये आपने बोला था 8th हाउस में अगर राहु आ रहा है, केतु आ रहा है, सो मे बी इफ यू आर लिसनिंग टू दिस एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी यू शुड चेक आपके 8th हाउस में केतु हो सकता है. एंड मे बी अगर आपके 12th हाउस में केतु है और आप मेरे दूसरे जो स्पिरिचुअलिटी वाले मैंने दूसरे एपिसोड्स बनाए, इफ यू आर ट्यूनिंग इनटू दैट, तो मे बी आपके 12th हाउस में केतु है. Okay, so moving on to the next topic, which again is related to husband and wife and divorces, which we see कि बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल. पहले भी होते थे, कम होते थे. अब उसको आप ये भी कह सकते हो कि पहले you know there was no women empowerment. हमारे जो elderly females थे वो चुप रहते थे, वो सहते ज़्यादा थे. I think हर चीज़ के pros and cons होते हैं. बट हैविंग सेड दैट, पहले लोग कुंडली मिलाते थे, आजकल लोग कुंडली कम मिलाते हैं. आई थिंक बीच में एक जनरेशन जो हमारी ऐसे आई, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में तो कुंडली देखकर मैच करके ही शादी करते थे. एंड देन द नेक्स्ट जनरेशन सेड नो, वी डोंट वांट टू डू दिस, यू नो, हम इसमें बिलीव नहीं करते. लेकिन आई सी इट नाउ अगेन, इट्स ऑन द राइज कि यंगस्टर्स को कुंडली मिलानी है. एंड उनको उपाय पहले से ही कर लेने, अगर उन्होंने अपना पार्टनर खुद चुना है तो. इट्स नॉट कि हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो ही हम कुंडली मिला रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि कुंडली मिलानी चाहिए इवन इफ यू आर इन रिलेशनशिप विद समबडी, आपको उसी से शादी करनी है? आई पर्सनली फील मिलानी चाहिए, चाहे आप लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज में तो फॉर श्योर मिलानी चाहिए. बिकॉज होता क्या है, कुंडली मिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है फॉर अ गुड मैरिड लाइफ. एंड इनिशियली एज यू सेड, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो एल्डरली लोग हैं, उनको ये पता था, वो लोग ये सब मिला के ही शादियां करते थे, मैरिजेस तभी हो पाती थी. बट नाउ विद पीपल मोर इनटू लाइक अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स लव मैरिजेस, वो लोग नहीं मिलाते. बट मिलाना ज़रूरी इसलिए होता है फॉर योर फ्यूचर लाइफ, बिकॉज व्हेन यू गेट मैरिड तो आपके गुण मिलते हैं, यू कम इनटू अ पार्टनरशिप. एंड जो आप 7th हाउस जैसा भी हम बात कर रहे थे, वो स्पाउस का हाउस तो है ही, इट्स योर मैरिज हाउस, बट इट इज़ योर पार्टनरशिप एज वेल. इट इंक्लूड्स बिजनेस पार्टनरशिप एज वेल, बट इट इज़ पार्टनरशिप. जैसे आप बिजनेस पार्टनर्स रहते हैं, 2 लोग पार्टनर्स, 3 लोग, व्हाटएवर, कितने भी लोग पार्टनर्स हैं, एंड एक हस्बैंड वाइफ, 2 लोगों की पार्टनरशिप है. सो वो पार्टनरशिप हम उससे देखते हैं, तो जो वो गुण मिलते हैं दैट इज़ पार्टनरशिप. एंड टोटल होते हैं 36 गुण. अब होता क्या है कि लोग कहते हैं कि हमारे 36 में से 17 मिल रहे हैं, 16 मिल रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट. सो एटलीस्ट आपके 18 मिलने चाहिए, एंड वी कैन राइज दैट नंबर टू 30.
अगर नहीं मिले अगर नहीं मिले तो हमें 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसमें. सो देयर आर 3 थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गुण मिलना इज़ नॉट द ओनली थिंग कि हाँ गुण मिल गए शादी कर लो. 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर, एक तो नाड़ी होता है, which is the health of the couple after they get married. ओके Then the second thing is the love and mutual respect, which we call Berkut, which is again extremely important. And then the third is Gan, which is the temperament between the two people. So अगर आप खुद सोचो, अगर couple की health सही नहीं है, so marriage it's not a good marriage. ऑफ कोर्स Then second, if you are not mutually respecting each other, you are not loving each other, then again it will either lead to separation or it will lead to mental separation, which means you guys are not together but you are still living together just because of the society. And the third thing is Gun, which is temperament. So again, temperament is extremely important between the two people. So that's why these 3 things are extremely important to get matched before you actually get married. Okay, and then you can take a call. Of course, of whoever course. you are seeing. And then we have remedies. We have so many other things, if the 3 things are not matching, you can talk to an astrologer, you can talk to myself. I can give you remedies and we can talk about it. So I'm and not they saying and they work. they do work. Yes, they do work. Yes. So if somebody has to contact you, how do they contact you? They can message me on Instagram. I've got my Instagram. And we can put the Yes, link in yeah, the description. you can put the link. Yes, Okay. that's good. Okay. And when we are talking about marriage and अब कुंडली मिलाना, एक बिग जो बहुत ही मेजर मुझे चीज़ लगती है, वो जो सुनी हुई है और जिससे बहुत लोगों को डर लगता है कि मांगलिक. Oh, yes. एंड बहुत आजकल मीम्स भी मैंने देखे हैं कि वो आपको पेड़ से शादी कराते हैं पहले, एंड जेनजीज आर मेकिंग मीम्स अबाउट इट, या अदर दूसरे रिचुअल्स होते हैं, दे मेकिंग फन ऑफ इट. बट व्हाट इज मांगलिक एंड Okay. व्हाट्स द ट्रूथ बिहाइंड इट? इज इट रियली अ रेमेडी कि आपकी शादी पहले एक पेड़ से होगी तो वो आपका, इज इट अ रेमेडी, वो आपका ठीक हो जाएगा? ओके, सो ये एक्चुअली एक रेमेडी है. भले ही आजकल जेनजीज जो है वो मजाक बना रहे हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड काफ़ी लोगों को ये बहुत ही हंसी वाली बात लगी कि अरे पेड़ से शादी करा दी, लेकिन एक्चुअली ये ट्रूथ होता है. कई लोग करते हैं. कुछ लोग पेड़ से शादी कराना, आपने सुना होगा घड़े से शादी करा दी. किसी का विष्णु विवाह बोलते हैं, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड विष्णु विवाह, विच मीन्स यू आर गेटिंग मैरिड टू द गॉड. So God is your first husband and then your actual husband is your second husband. But technically your husband is your first husband for the world, but that's just for your planetary positions. तो ऐसा होता है, बहुत सारे horoscopes में ऐसा होता है कि your first marriage would not lead to a good future. Your first marriage will lead to divorce at the end of the your first marriage will lead to a divorce. तो कोई भी नहीं चाहता आफ्टर फ्यू ईयर्स कि हमारा डिवोर्स हो जाए, व्हेन एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पीली मैरिड. तो इस वजह से वी हैव टू परफॉर्म दीज रेमेडीज बिफोर वी एक्चुअली गेट मैरिड. So that's why all these remedies come into business, and then we can actually perform these remedies. स्पाउस की डेथ हो जाती है, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा होता है. वो यूजुअली अगर आप इफ यू टॉक अबाउट नक्षत्र, ऐसे बहुत सारे नक्षत्र होते हैं जो 2 नक्षत्र को शादी नहीं करनी चाहिए. ओह रियली? यस. सो दैट्स व्हाई इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप एक कुंडली मिलान, एक बहुत ही ईजी चीज़ होती है विच इज़ जस्ट मैचिंग योर हॉरोस्कोप्स बिफोर यू गेटिंग मैरिड. ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप पहले ही पता चल जाएंगे एंड यू विल गेट रेमेडीज, यू विल फाइंड रेमेडीज कि आप वो कर लो एंड देन एटलीस्ट यू विल बी टेंशन फ्री. एंड नाउ लेट्स कम ऑन दी मांगलिक दोष. So Manglik dosh is one of the most common and a lot spoken about dosh. And बहुत ज़्यादा फेमस ये इसलिए हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं अरे आपने मांगलिक हैं, मांगलिक से शादी नहीं करी तो डेथ हो जाएगी स्पाउस की, आप यू वुड नॉट बी इन अ हैप्पी मैरिड लाइफ. बट ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता. सो आई विल टेल यू फर्स्टली व्हाट इज मांगलिक दोष. सो मांगलिक दोष बेसिकली इफ द पोजिशन ऑफ मार्स in your horoscope is either on the first house, 4th house, 7th, 8th or 12th house. So if Mars is situated in either of these houses, that means you're a Manglik.
और मार्स की राशि अगर यहाँ पे हो तो Um, जैसे एरीज है फर्स्ट हम्म, हाउस में, नहीं, मार्स की राशि से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मार्स का जो प्लैनेट है उसकी पोजिशनिंग यही हाउसेस में, फर्स्ट हाउस। एस्पेक्ट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता? एस्पेक्ट से आपकी वो डिपेंड करता है एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है। आपके 7th हाउस पे आ रहा है, 7th हाउस लॉर्ड पे आ रहा है, तो उससे अलग अलग सिनेरियोज बनते हैं। एंड देन वी हैव टू लुक इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स आल्सो। जुपिटर का एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा है, शनि देव का एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा है, बिकॉज इफ जुपिटर इज कमिंग, जुपिटर इज एस्पेक्टिंग, इट कैन actually solve majority of your problems, ओके। whether it's marriage, education, health, child, etc. हम्म, बट मंगल जो है वो वैसी एक क्रूअल प्लैनेट, एक मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है। तो अगर वो स्पाउस हाउस को देख रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वी कैन सॉर्ट दैट आउट, वी हैव रेमेडीज फॉर दैट। बट मांगलिक इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और मांगलिक ये जो पोजिशनिंग्स मैं आपको बता रही हूँ ना, फर्स्ट हाउस, 4th, 7th, 8th एंड 12th हाउस, ये 5 हाउसेस ऐसे हैं कि अगर मंगल, दैट इज मार्स, आपका वहाँ पे सिचुएटेड है प्लैनेट, सो दैट मीन्स यू आर मांगलिक। नाउ डू यू हैव मांगलिक दोष और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओ, तो अगर मैं वही आई वॉज कमिंग टू दैट कि ये तो बहुत सारे हाउसेज हैं, इट्स नॉट वन और टू, ये तो बहुत लोगों के होंगे। Exactly. So there are 43% people who are Manglik in this universe, ओ वाह, which is a हाफ ऑफ huge इट। number. Yes, हाँ, yes, हाफ ऑफ it's द a huge number. And some people, and especially if we talk about South India, they feel that if Mars is on your 2nd house, then also you're Manglik. रियली। So just imagine, it has increased the percentage हाँ, of people who are having Manglik बट देन dosh. दैट डजंट मीन कि आप मांगलिक हो तो मांगलिक दोष भी है। Exactly. That's the point, and that's the catch there, क्योंकि ये सब चीज सब लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि मांगलिक दोष कट जाता है बहुत सारे लोगों के साथ। If Jupiter is aspecting, if Mangal is in Jupiter's Rashi, or if Saturn is aspecting Mars, so things happen and things can change. So it doesn't mean that if you are a Manglik, you have a Manglik dosh. ओके। So first, everyone needs to get that thing clear, that if you are a Manglik, it's not necessary that you have Manglik dosh in your और kundali. अगर मांगलिक दोष नहीं है तो हमें शादी से करने से पहले कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है? नहीं, मांगलिक दोष, I'll tell you, मांगलिक दोष है या फिर मांगलिक है जो बेसिकली मांगलिक है, वो क्यों उन्हें मांगलिक बोला जाता है, क्यों ये बोला जाता था कि स्पाउस की डेथ हो जाएगी, या क्यों उनसे लोग शादी करने में डरते हैं? I'll tell you, the reason is because Manglik, they are highly ambitious, they are aggressive, they they are ambitious, they're aggressive, they are really high in sexual drive, and they want everything, Aggression है। exactly. Yeah, they Mars are is full of aggression, energy. it's hot and Exactly, they are Yeah. full of energy. Yeah. So what happens, that to match their energy, they need a partner who can match their energy. right. Okay, now अगर आप फुल ऑफ एनर्जी हो, आप बिल्कुल एनर्जी के साथ आ रहे हो अपने पार्टनर से कुछ आइडिया शेयर करने, अरे आज ये करते हैं, लेट्स कुक दिस, एंड योर पार्टनर इज लाइक आई डोंट वांट टू, या द पार्टनर इज लाइक oh why don't we just order something. हाँ, So there is an energy gap between the two of them. तो ये प्रॉब्लम या क्रिएट वो करता है। enthusiasm ही नहीं है। एग्जैक्टली। अब कोई पार्टनर अग्रेशन, अगर कोई पार्टनर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है तो ऑब्वियसली योर स्पाउस वुड नॉट लाइक इट, ठीक है, इट विल अगेन लीड टू फाइट्स, डिस्कशंस। सो अगेन इसलिए मांगलिक लोगों से शादी नहीं करनी होती है, इसलिए ये बोल देते हैं। एंड देन द थर्ड थिंग, initially what used to happen in the ancient times, because as I said, Manglik people, they have a very high sexual drive, तो उससे क्या होता था कि बहुत जल्दी women pregnant हो जाती थी, Okay. and because of pregnancy their health started deteriorating. So that's why उनको ये एक myth बन गया कि if you are Manglik married to a non-Manglik, your spouse will die. Oh. So this is the story behind Manglik not marrying a non-Manglik. Right. So that's it. Otherwise ऐसा कोई problem नहीं है. It's very good if you are Manglik because you are so ambitious, you are aggressive, and somehow आजकल जो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके लिए एम्बिशन होना और अग्रेशन होना दोनों बहुत ज़रूरी हो जाता है, एंड यू नीड एनर्जी ऑफ कोर्स. कोई रेमेडी है इनकी कि
one partner is super enthusiastic, the other one is not, say they are already married और बाद में पता चल रहा है ये मांगलिक है मैं नहीं हूँ, तो क्या कुछ ऐसी रेमेडी है जो कोई इसकी कर बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताऊं, वो ये है कि आप दोनों जिम जाना स्टार्ट शुरू करो। तो दोनों जो लोग मांगलिक नहीं है उसको तो मन नहीं करेगा ना जिम जाने नहीं का। नहीं, लेकिन जो मांगलिक है या जिसको मंगल का भी अगर कोई रेमेडी करनी है तो वो जिम जाना स्टार्ट करें। Okay. एंड स्पेशली विद पीपल हु हैव मार्स इन देयर 7th हाउस, उनको तो अपने पार्टनर्स के साथ डेफिनेटली जिम जाना चाहिए। अच्छा, एंड अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, यू सेड कि पार्टनर का मन नहीं है, अगर वो नॉन मांगलिक है और इतना एनर्जी वाला नहीं है, तो आप नॉर्मली वॉक कर लो या डू एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, Physical फिजिकल एक्टिविटी exercise कर लो। together. एग्जैक्टली, Okay. जस्ट टुगेदर। बिकॉज उससे क्या होगा, अब आप जिम जाओगे, यू विल स्वेट, यू विल लूज एनर्जी, so that is how you are calming down your Mars. Okay. Yes. So this is a very good remedy for people who are Manglik and who have also married a non-Manglik. So they should perform this activity. I think meditation will also help over here. Definitely. Meditation is, as I said, it is an underrated thing, which is why people, they're not talking about meditation. But I think as we are moving towards the future, everyone will start talking about meditation, They are spirituality, already, yeah. and everyone wants to go in that line. Yoga is so such a trendy thing now. Everyone's performing yogas, they are listening to video, I mean they're listening to podcasts, they're listening to things, and they're talking about yoga. So I think yoga again, which is underrated, but it is really powerful. और ऐसे कौन से दोष होते हैं that we should be worried about, because there are lots of them. I think काल सर्प दोष is one, which is again a big one. Yes. तो उससे भी लोग बहुत डरते हैं कि काल सर्प दोष है, बिजनेस नहीं बनेगा, हेल्थ में इशू रहेगा. What is काल सर्प दोष? Okay, so again a very popular one, और सब लोग बहुत डरते हैं काल सर्प दोष से भी. Again काल सर्प दोष, अभी जैसे हम राहु केतु की बात कर रहे थे, राहु केतु थोड़ा ज्यादा ही अभी आजकल चल रहा है, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट राहु केतु. अगेन राहु केतु का ही कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे. Okay. अगर राहु और केतु, एज आई सेड स्टार्टिंग में ना, दोनों ऑपोजिट साइड में रहते हैं कुंडली के, तो अगर आपके हॉरोस्कोप में राहु एंड केतु, ऑफ कोर्स दे आर ऑपोजिट, एंड सारे प्लैनेट्स एक साइड में आ जाएं, आइदर दे आर on the left of Rahu and Ketu, or they're on the right of Rahu and Ketu, or they're on top or Scattered नहीं है. scattered nahi hai. They are in between. Not in between, on one side basically. So suppose for example, your Rahu is in 12th house, your Ketu comes in 6th house, and then all the planets are either on 1st house, 2nd house, 3rd house, 4th or 5th. yes. या So- फिर 7th 8th 9th 10th 11th. Exactly. Okay. So either of these side, or up and down. So like suppose your Rahu is in 4th house, Ketu in the 10th house, and all the planets are in 1st, 2nd, 3rd houses. So that will create a Kal Sarp dosh. ओके, एंड ये कितना कॉमन है? और ये कॉमन होता है, बहुत कॉमन होता है. आई डू नॉट हैव अ परसेंटेज, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की कुंडली में देखा है काल्प सर्प दोष. एंड होता क्या प्रॉब्लम, ये इस क्या क्रिएट करता है काल्प सर्प की वजह से, ये होता है कि वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग, आपका कोई भी काम का रिजल्ट नहीं मिलता. यू नो, यू आर वर्किंग हार्ड, और यू हैव वर्कड हार्ड फॉर अ प्रोजेक्ट, एंड देन एंड में आइदर वो प्रोजेक्ट ही डिसमिस हो गया, और यू हैवंट कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, और यू फील कि यार जहाँ पे भी जा रहा हूँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, सिबलिंग्स के साथ भी हो जा रही है, या फिर कुछ भी काम बन नहीं पा रहे हैं. जैसे बहुत लोग होंगे, या मे बी आपने सुना हो कि यार हमने मेहनत तो बहुत करी, बट at the end we did not get the results that we were looking for. So this is काल सर्प दोष. ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. और कुछ काल सर्प दोष थोड़े ज़्यादा ख़राब होते हैं, वो आपको मैरिज लाइफ बहुत ख़राब कर देंगे, और you would not get married at all. ओह, It can affect your finance, it can affect your children's health. बट काल सर्प दोष कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको करोड़पति भी बना देते हैं. रियली? यस, तो वो आपका हॉरोस्कोप चेक करना पड़ता है उसके लिए, कि आपको कौन सा काल्प सर्प दोष है, और आपको
मतलब है भी या नहीं है, कई बार लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज अगर एक प्लैनेट भी आपका ऑन एंड ऑफ हो जाए, वो उसमें नहीं आएगा, तो आपका कालसर्प दोष कैंसिल भी हो जाता है. इसलिए आपको अपना एक बार हॉरोस्कोप दिखा लेना चाहिए कालसर्प दोष के लिए. ऑल्सो फिर आपका कालसर्प दोष गुड है बैड, एज आई सेड. और कभी कभार ये होता है किसी का बैड होता है, तो उसको फिर दैट पर्सन शुड नॉट गेट मैरिड. अगर उसने शादी कर ली, लाइफ ज़्यादा मेसी हो जाती है, मे बी फाइनेंशियली भी ग्रो नहीं कर पाएगा. इस वजह से कई सारे लोग आपने देखा होगा कि शायद उन्होंने शादी नहीं करी, बट दे आर सुपर रिच एंड दे हैव कालसर्प दोष इन देयर कुंडली. अच्छा. तो ऐसा भी होता है. तो कालसर्प दोष में कई सारी बार ना आपको एक चीज़ लाइफ की छोड़नी पड़ जाती है ओके. टू अचीव समथिंग इन लाइफ. एंड मैरिज इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि लोग शादी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं उसको. हेल्थ ठीक रहती है जिनकी कालसर्प दोष? नहीं, ज़रूरी नहीं है. हेल्थ अगेन इज़ एन इशू. जैसे मैंने आपको बताया ना, वैसे 12 टाइप्स के कालसर्प दोष होते हैं. ओ, तो 12 अलग टाइप्स के होते हैं. एग्जैक्टली अच्छा. 12 टाइप के स्नेक्स होते हैं. सर्प वर्ड इज स्नेक. स्नेक. हाँ. 12 टाइप के स्नेक्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के दोष बनाते हैं. हम्म. तो अगर आपका, एज अ सेड कि आपका एक बार हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा काल्प सर्प दोष है, उसका कितना अफेक्ट आपकी लाइफ पे हो रहा है. और इसकी बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज होती हैं. अगर आपको दिख रहा है कि आपको काल्प सर्प दोष है, तो पहली चीज़ तो आपको पूजा डेफिनेटली करानी ही पड़ती है इसके लिए. जो Okay. प्रॉपर पंडित जी होते हैं, ट्रेडिशनल पंडित जी जो होते हैं, वो करते हैं. इवन इन इंडिया देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस हु एक्चुअली डू कल्चर पूजा, स्पेशली इन द साउथ इंडिया साइड. सो अगर कालसर्प दोष है तो पूजा तो फॉर श्योर करानी ही पड़ती है. एंड दिस इज वन ऑफ द दोषेस जिसमें आपको हर 3 years में पूजा रिपीट करनी पड़ती है. तो ये थोड़ा हेक्टिक है, और इसी वजह से लोग नहीं चाहते कि हमारा काल्प सर्प दोष बने या हमारा काल्प सर्प दोष हो हॉरोस्कोप में, लग्न चार्ट में स्पेशली. एंड ऑल्सो बाकी जैसे मैंने बताया, पूजा तो एक बहुत ही मस्त चीज़ है. अगर आप पूजा नहीं करा पा रहे, तो आपको, बिकॉज सर्प इज स्नेक एंड इट इज़ रिलेटेड विद लॉर्ड शिवा, तो आपको शिव जी की पूजा करनी पड़ती है. आप शिव जी को आप जल अभिषेक करिए, या फिर नॉर्मल जैसे आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं ना, हम पानी दूध से उनको जल चढ़ाते हैं, तो आप वो चढ़ा सकते हैं एवरी मंडे जाके. और अगर समटाइम्स देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग हिंदुइज्म, कोई और रिलीजन फॉलो करते हैं, एंड दे कैन सी एंड दे सी दैट इफ दे हैव गॉट काल्प सर्प दोष, सो व्हाट दे कैन डू इज, एक चांदी का स्नेक बनाना होता है छोटा सा, एंड यू कैन फ्लो दैट इन द फ्लोइंग वाटर. मतलब किसी भी नदी में बहा दो. हाँ, एग्जैक्टली, एक स्नेक बनवा के. एग्जैक्टली, हाँ. तो वो भी एक उपाय होता है. अगर आप शिवलिंग नहीं जा पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे, पूजा नहीं करा पा रहे, तो दिस इज अगेन अ स्मॉल रेमेडी विच यू कैन डू. बट इट इज डेफिनेटली एडवाइजेबल कि आप एक बार अपना चेक करा लो हॉरोस्कोप इसके लिए. और कौन से दोष होते हैं दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ, या अगर से ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें रिपीट हो ही रही है, तो वी नीड टू गेट इट चेक्ड इन टर्म्स ऑफ आप अपना हॉरोस्कोप चेक करवा लो कि कोई दोष तो नहीं है. दोष नहीं, बट मैं एक और चीज़ बोलूँगी यहाँ पे. योग होता है एक, जिसे बोलते हैं एक योग होता है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं. उस योग का नाम होता है चंद्रमा एंड सॉरी, एक योग होता है, उसको हम बोलते हैं अमावस्या योग, या फिर उसको बोलते हैं हम पूर्णिमा योग. तो ये उन लोगों की कुंडली में बन जाता है हु इज आदर बॉर्न ऑन न्यू मून डे विच इज अमावस्या, और द पर्सन इज बॉर्न ऑन फुल मून डे विच इज पूर्णिमा. तो उससे ये होता है कि उनके इमोशंस ना थोड़े ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं. दे आर हाईली इमोशनल पीपल. तो आप ये देखोगे कि उनकी लाइफ में हर चीज़ इमोशन से जुड़ी है. हर चीज़ में उनको लगेगा कि हर डिसीजन में भी इमोशनली ले रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं, इमोशनली सोच रहे हैं. कभी कभार ऑफ कोर्स अच्छा होता है इमोशनली डिसीजन लेना, बट ऑन द अदर हैंड कभी कभार इमोशनल डिसीजंस आर नॉट राइट. एग्जैक्टली, आपको प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है. या फिर उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, वो इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होंगे, कहीं ना तो कहीं इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे. तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर देम. तो वो इमोशनली उतने स्टेबल नहीं फील करते हैं अपना आप को. ये लगेगा कि नहीं, थोड़ा वीक फील कर सकते हैं कभी कभार इमोशनली.
तो उनको एक बहुत ही सिंपल सा उनके लिए एक वो होता है, रेमेडी भी बोल सकते हैं आप उसको, कि आप न्यू मून डे में या फुल मून डे में आप कुछ भी वाइट कलर की चीज़ आप डोनेट कर दीजिए। अच्छा, हाँ, लाइक यू कैन डू इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, यस ऑफ कोर्स, जैसे एवरी न्यू मून पे कर सकते हो हाँ या एवरी न्यू मून पे, एवरी फुल फुल मून मून पे पे। कर दो। हम्म, आपको डोनेट करना होता है वाइट कलर का कुछ भी, इट कुड बी, एंड इट इज एडवाइजेबल इफ यू डोनेट समथिंग, it is advisable if you donate a food item which is like either sugar, or you can donate sorry, राइस कर सकते हैं, we can donate something which is white in color. We can donate rice or sugar, or Milk. also milk. I would not say, because milk थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कई प्लानिटरी पोजीशंस आपकी हॉरोस्कोप में ऐसे बनते हैं जो जिसमें आपको मिल्क डोनेट नहीं करना चाहिए। ओके, So I do not advise milk to everyone. So sugar and rice is something which you can donate for sure. या फिर एक बहुत अच्छी चीज़ है, खीर बना के डोनेट कर दो। वो भी मिल्क हाँ, होता है उसमें, वो अलग बात हो जाती है, क्योंकि वो बन गया। हाँ, वो मतलब खीर इज लाइक आपने एक फूड प्रोडक्ट बना दिया है प्रॉपरली, तो आप खीर डोनेट कर सकते हो। या फिर आप आपके घर में एल्डरली हैं, जैसे इंडिया में हम लोग बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप अपने एल्डरली, आपके दादी दादाजी हैं, आपके नानी नाना जी हैं, अगर आपको कभी भी मून से रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा है, मेंटली आप परेशान हो रहे हो, वो मून की बहुत अच्छी रेमेडी होती है कि आप एल्डरली को अपने हाथ से बना के खीर खिला दो। ओके, हाँ, सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड रेमेडी। ओके। तो जितने भी मून इमोशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, वी कैन से कि ये मून से होते हैं, यस, कि दैट्स हम करेक्ट। बहुत इमोशनल हैं या इमोशनलेस हैं। सम पीपल आर टोटली इमोशनलेस, मतलब तो इमोशनलेस इज समथिंग डिफरेंट। इमोशनली ये होता है कि आप ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हो, छोटी छोटी बातों में आप इमोशनल हो जा रहे हो, और इमोशनली डिसीजंस ले रहे हो लाइफ में। तो अगर इमोशंस कैन बी एक्सट्रीम, ओके, एंड इमोशंस ऐसे नहीं है बस हंसना रोना नहीं, अग्रेशन इज एन इमोशन। तो अगर आप इमोशन से रिलेटेड आपको कोई भी लग रहा है, कोई इशू हो रहा है, तो आप कुछ भी वाइट कलर की चीज डोनेट कर सकते हो। इवन वाइट कलर के क्लॉथ होता है वो डोनेट कर सकते हो। ओके, आप जैसे यंग गर्ल्स होती हैं, या फिर आप विडो लेडी को आप डोनेट कर सकते हो, इस टाइप की वाइट चीज। शीट्स डोनेट कर हाँ सकते हाँ हो, एग्जैक्टली, वाइट कुर्ता पजामा, हाँ 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 बहुत कुछ एग्जैक्टली, वाइट हाँ जो है वो आप डोनेट कर सकते हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। स्टडी रिलेटेड कोई ऐसा दोष होता है कि आपके स्टडीज में ही आपको प्रॉब्लम आ रही है, या अगर किसी को कोई स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है इन टर्म्स ऑफ वो पढ़ते बहुत हैं बट माइंड से रिलेटेड, इन टर्म्स ऑफ उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, या पढ़ बहुत रहे हैं रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जैसे स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो उसके लिए कुछ रेमेडी होती है, या इज देयर अ पर्टिकुलर दोष या कुछ उनकी कुंडली में कुछ ऐसा होता है कि उनको वो पढ़ने नहीं दे रहा है या वो पढ़ नहीं पा रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसा कोई दोष नहीं है, वो आपके प्लानिटरी पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर कई बार आपके ऊपर, जैसे अभी मून है, एज यू वर टॉकिंग अबाउट मून, बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, बट उसमें काफ़ी सारे मेलेफिक प्लैनेट्स ने अपना वो कर दिया, एस्पेक्ट डाल दिया, तो उस वजह से मून आपका जो है वो हैम्पर्ड हो जाता है। ओके, तो वैसे ही कई सारे प्लैनेट्स होते हैं कि अगर वो हैम्पर्ड हो गए हैं, तो उस वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, करियर में मन नहीं लग रहा है। एज यू वर डिस्कसिंग अबाउट केतु ऑल्सो, इट इज़ अगेन डिटैचमेंट। ठीक है, सो अगर आपका केतु कहीं से कंजंक्शन में आ रहा है या कनेक्शन बना रहा है विद योर स्टडीज, अगेन यू विल फील डिटैच्ड। तो ये मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए पूछ रही हूँ, तो कोई ऐसी रेमेडी होती है जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिससे दे फील कि दे आर फीलिंग मोर फोकस्ड, अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन, ऑफ कोर्स मेडिटेशन तो हेल्प करेगी ही, बट उसके अलावा कोई ऐसी रेमेडी है जो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं? लुक, रेमेडी ऐसे कोई एग्जैक्टली मैं आपको ऐसी रेमेडी नहीं बता सकती हूँ कि हाँ अभी हमने ये रेमेडी करी और एकदम से, या कोई ऐसी यूनिवर्सल रेमेडी नहीं है? नहीं, इस चीज़ के लिए कोई यूनिवर्सल रेमेडी नहीं है। इसके लिए ऑब्वियसली आपको आपके प्लानिटरी पोजीशंस देखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से हम रेमेडी फिर भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें पता चल रहा है कि कोई प्लैनेट जो है वो हैम्पर्ड हो रहा है, कोई प्लैनेट की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या वो किसी ऐसे हाउस में आ गया है जिसमें वो हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज़ अगेन एन इशू।
तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, अब एक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक हाँ मैं टच बेस करना चाहूँगी, सुसाइड। हाँ कैन यू टेल बाय लुकिंग एट पर्सन्स हॉरोस्कोप कि ये सुसाइडल थॉट्स आएंगे इनको, या ये कभी ऐसा कुछ करेंगे? यस वी कैन। आप ओके, प्लानिटरी पोजीशंस ऐसे बन जाते हैं जिसमें आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, तो वो प्लानिटरी पोजीशंस ऐसे बन जाते हैं। किसी किसी के लग्न चार्ट में वो कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। तो लोग ऐसे लगन चार्ट ऐसा होता ही है, यस कई सम यस पीपल आर बॉर्न विद दैट कि एग्जैक्टली। डेथ ही ऐसे होनी है। डेथ ही होनी है इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वो तो हर कोई अपनी डेथ लिखवा कर आया है। तो वही सो मैं बोल हाँ रही थी, कई एग्जैक्टली लोग वो अपनी सुसाइडल भी, हाँ हाँ लिखवा कर ही सुसाइडल भी लाते आती हैं। है। हाँ जी, डेथ आप लिखवा के आते हो। द डे यू आर बॉर्न आपकी डेथ भी लिख चुकी है उस दिन। तो आपकी डेथ सुसाइड से होनी है, आपकी डेथ एक्सीडेंट से होनी है, आपकी डेथ डिजीज से या नॉर्मल डेथ होनी है, वो सब कुछ लिख चुका है ऑलरेडी। लेकिन हाँ, अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल आई मीन वही सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम वो देख सकते हैं, प्लानिटरी पोजीशन से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ भाई आपका ऐसे हो रहा है, आप ये चीज़ करो। तो इफ somebody is feeling suicidal तो उनको एक बार चेक करा लेना चाहिए। डेफिनेटली हो सकता है इट्स अ मोमेंटरी ट्रांजिट ऑफ अ प्लैनेट या कुछ और है जो आपको ऐसे थॉट्स दे रहा है, विच जैसे हमने पहले डिवोर्स की बात करी थी, दैट इट मे पास। यस तो यू नो आई होप, मैं इन आइडियल वर्ल्ड आई रियली होप कि कोई ऐसा ना करे, बट द रियलिटी इज कि लॉट ऑफ पीपल कमिट सुसाइड ऑन एवरी सिंगल डे बेसिस, स्पेशली यंगस्टर्स, which really breaks my heart. तो इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना है, यू कैन गो टू एस्ट्रोलॉजर एंड आप जाके अपनी रेमेडी देख सकते हो। एंड एटलीस्ट अगर आपको पता चल जाए कि ये मेरा बहुत ही मोमेंट्री फेज है, या मे बी आई एम फेसिंग अ टफ टाइम फ्रॉम 1 year, और एकदम से ये बहुत ही ज़्यादा मोमेंट्री फेज ऐसा आ गया जो मुझे बिल्कुल फील कर रहा है कि आई कांट टेक इट एनी मोर, मे बी आपको कोई रेमेडी सजेस्ट कर दें या। डेफिनेटली बिकॉज अब देखिए, जैसे मून एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारा 2.25 डेज में, टू बी रियली प्रिसाइज, वो मूव कर जाता है राशि में दूसरी राशि में, विच मीन्स हाउस भी चेंज हो गया। तो जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे, वो हमें, आपको अगर याद हो तो, वो ऐसे बोलते थे, अरे 2-3 दिन सोच ले फिर करना ये काम, 2-3 दिन और सोच, गाड़ी लेनी है ना, 2-3 दिन और सोच फिर करना, फिर देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे गाड़ी लेनी है कि नहीं। सो व्हाई दे यूज्ड टू से दैट, बिकॉज मून का पोजीशन बदल जाएगा। एंड मून इज इमोशन। एग्जैक्टली। सो फिर क्या होगा, मे बी 2 दिन बाद आपका मन ही ना करे गाड़ी लेने, अरे यार फालतू में गाड़ी लेने का सोच रहे थे। दिस इज सो रिलेटेबल एक्चुअली, मतलब नॉट इन गाड़ीज एस्पेक्ट, बट मैं सोच रही हूँ कि ऐसे कई बार होता है कि अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लो कि नहीं एकदम से मुझे कोई स्टेप नहीं लेना है, 2 दिन बाद चीजें चेंज हो जाती हैं। Exactly. काफी कुछ चेंज हो जाता है। 100%। सो मून वही 2 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदलता है, बट एज आई सेड, टू बी प्रिसाइज 2.25 डेज होते हैं जिसमें वो अपना राशि बदल लेता है। एंड इसीलिए हम लोग, जैसे हम लोग कई बार शॉपिंग करने जाते हैं, अब कोई बैग है पसंद तो बहुत आ रहा है, बट क्या हम उसी दिन ले पाएंगे? इट्स नॉट नेसेसरी। मे बी वी ऑलवेज से अच्छा वील स्लीप ओवर इट। हम सोचते हैं, 2 दिन बाद लगता है यार कहाँ इतना पैसा वेस्ट कर रहे थे, इतने बैग्स तो पड़े हुए, क्या करेंगे एक और बैग लेकर। यू नो दैट इज हाउ मून इज फंक्शनिंग। तो मून आपका मूड एवरी डे, किसी दिन आप बैड गुड मूड में होते हो, तो वो इसीलिए। और जैसे मून है हमारा, मून बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है, क्योंकि मून एक ऐसा है जो हमारे मूड स्विंग्स को बताता है, हमारी मदर को भी बताता है, वो तो ऑब्वियसली। बट मून, जैसे हम इफ़ वी टॉक अबाउट नक्षत्र, तो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, एंड जो ये सारे नक्षत्र हैं ये मून की वाइफ्स हैं। सो ही गिव्स 1 डे टू एवरी वाइफ। तो हर नक्षत्र में हर एक दिन मून आता है, तो उससे भी हमारी
वाइब्स, हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं। हम्म, अब आपने किसी दिन नोटिस किया हो मे बी कि आज ऐसा दिन था कि मैंने कितने पुराने दोस्तों से बात करी। आप रोज तो नहीं बात करते हो, होता है, हाँ, बट कई बार आप नोटिस करना कि आपको लगेगा कि यार या तो आपने कोई पुरानी एल्बम खोल ली या कोई पुराने फोटोज देखने फोटोज लग देख रहे, गए, हाँ, ठीक है, एंड यू विल बी लाइक यार वो टाइम था। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। हाँ, तो वो मून की वजह से, क्योंकि मून एक उस नक्षत्र में चला गया है जो आज आपको पुरानी यादें ताजा करेगा। यस, यस, ट्रू। सो अगेन अ वेरी गुड थिंग। मेरे साथ बहुत होता है ऐसे। हाँ हाँ, मेरे और मेरे बच्चों का फेवरेट टाइम पास है, मेरे फ़ोन में वो लोग अपने बचपन की अच्छा फ़ोटोज़ फोटोज देखते हैं। देखते हैं। तो एवरी डे आई एम नॉट इन अ मूड टू डू दैट, मे बी एग्जैक्टली वंस इन अ वाइल, आई विल से वंस इन अ मंथ, तो वो एक पर्टिकुलर कोई नक्षत्र में जब मून आता है, एग्जैक्टली देन आई टेल देम यस ओके, आज हम बैठ के एग्जैक्टली फोटोज देखेंगे। तो दैट इज इट। सो मून, हाँ, मून बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। अभी जैसे अब आप देखो, अगर किसी का मूड बहुत ज्यादा ऑफ है, आई गिव यू अ वेरी क्विक रेमेडी ओवर हियर। अब किसी का मूड ऑफ है, कोई बहुत परेशान है, एंड आपको उसको जाके समझाना है, कंसोल करना है। आप एक ग्लास लो, पानी का ग्लास लो, आप पानी का ग्लास बीच में रखो, कॉन्वर्सेशन करो, एंड ये नहीं कि आप उससे बिल्कुल डिप्रेसिंग बातें करो, बिकॉज ऑब्वियसली आप कंसोल करने के आप यू विल मेक हर और हिम हैप्पी। तो आप उसको खुश कर रहे हो, आप देखना विद इन फ्यू मिनट्स उसका मूड चेंज हो जाएगा, पानी का ग्लास रखने पानी का से ग्लास रखने से। उसको पानी को बाद में हाँ, फेंक दें और हम, पानी को पीना नहीं है, उसको किसी फेंक प्लांट दें, में डाल देना। ओके, हाँ, ऐसे ऑब्वियसली सिंक में ना डालो, किसी प्लांट में ग्ला डाल दो तो। घास में डाल दो, मिट्टी में हाँ डाल हाँ दो, एग्जैक्टली, हाँ, बिकॉज उसने वो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर ली। राइट, हाँ, So this is very important हाँ, remedy for people who are not feeling well, उनका मूड ऑफ है या गुस्सा आ गया है, लड़ाई हो रही है किसी की, ट्राई करके देखना आप, यू विल फील द चेंज। वाओ, यस अ वेरी गुड टिप, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टिप। एक तो ये जो आपने दी, और इससे पहले भी जो आपने बताया कि कोई काम इंस्टेंटली मत करो, 2 दिन सोचो, एग्जैक्टली, 2-3 दिन डेफिनेटली सोचो, डेफिनेटली। सो अब 3 days का बफर रखो, थिंक अबाउट इट 3 days and see how you feel on a fourth day about एग्जैक्टली it. एग्जैक्टली And if you still feel strong about it कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, then go and do it. 100%, हाँ, 100%। तो मून एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत सारी आप, लाइक मेनी पीपल ड्रिंक कोकोनट वाटर इन द मॉर्निंग। हम्म, आपने देखा होगा कोकोनट वाटर, अगेन मून है, और मून जो है वो राहु को काम करता है। oh, सो व्हाट हैपेंस इफ राहु इज ट्रबलिंग यू एंड यू स्टार्ट डूइंग मून रेमेडीज, इट विल काम योर मून, सॉरी काम योर राहु। full moon fasting या new moon fasting, is that a remedy as well? हाँ, फुल मून, न्यू मून में यूजुअली नहीं फास्ट करते हैं, फुल मून में ज़्यादा फास्ट करते हैं लोग, पूर्णमासी का फास्ट रखते हाँ, हैं। इट इज़ ऑब्वियसली अ रेमेडी। हम्म, उसमें आप सॉरी चंद्रमा को, मून को आप पानी जल चढ़ाते हैं, चंद्रमा के मंत्र होते हैं, यू कैन रिसाइट द मंत्रास। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये है कि बहुत छोटी छोटी रेमेडीज से भी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। At one stage in my life, I was really struggling with my mental health. So, because I'm a Sadhguru follower, तो at that point, I think this is 10-12 years ago, और मैं अपने बहुत conversations में मैं इसको mention करती हूँ कि first thing I started doing, मैंने सदगुरु की first book पढ़ी, I think उनकी कोई वीडियो में भी उन्होंने कहा था, if you are aware of the moon cycles, आप emotionally balanced हो जाओगे. Yes. Just be aware of it, go have a look at it. आप full moon में जाके full moon को देखो, and you know, full moon fasting is very important. तो I actually 2-3 years straight मैंने full moon fasting करी, and it made a huge difference. पहले 2-3 महीनों में मुझे फ़र्क दिखा, अभी पहले 2-3 तो मुझे हेडेक बहुत हुआ था, but I think maybe 6 months में I saw a huge difference in my mental stability, और जो मुझे mood swings, और जो मैं काफ़ी calm, I felt a lot calmer. तभी मैंने आपसे पूछा ऐसी कोई रेमेडी होती है 100% कि आप रेमेडी फास्ट, होती है। हाँ हाँ, फास्टिंग इज अ वेरी गुड रेमेडी, लाइक फॉर ऑल द प्लैनेट्स। बट अगेन फास्टिंग के रूल्स होते हैं, यू नो, विच पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। हर प्लैनेट का अपना अलग फास्ट का डे होता है, एंड इफ यू आर फॉलोइंग इट, इफ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, देन डेफिनेटली इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। और जैसे आपने बोला ना, अभी आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तो ये भी एक साइन होता है। अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हैं फुल 100% दे के, मन लगा के, यू विल फील
a little bit of negativity in the sense कि आपकी तबीयत खराब हो गई या you are not feeling well, headache हो गया या घर में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई, आइदर आपका प्लम्बिंग इशू हो गया कुछ या कोई और इशू ऐसे हो गया, तो that is a sign that the remedy is working on you. ओह, और कई बार लोग कहते हैं ना, मैंने तो ये हाँ कुछ नया शुरू किया है, अच्छे उससे शुरू किया और फिर ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ गई, एग्जैक्टली तो मतलब दे गेट पुट ऑफ कि ये मे बी आई शुडंट डू दिस. ट्रू मतलब कई बार ये भी होता है कि आपकी प्लैनेट्स उस समय क्या बोल रहे थे, शायद आपको गिरना था, आपको चोट लगनी थी, अब ऑब्वियसली उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आपका प्लैनेट्स आपकी रेमेडी वर्क कर रही है, बट हाँ ये होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वेयर अ रुद्राक्ष, आप कई सारे लोगों को देखोगे आप रुद्राक्ष पहना है, कई सारे मुखी के रुद्राक्ष आते हैं, तो अगर आप रुद्राक्ष जब पहनते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में आपको फीवर आ जाता है रुद्राक्ष पहन के. इट्स वेरी Really? इजी. यस, क्योंकि वो एक आपने एक बहुत ही पवित्र स्टोन अपने से वो किया है, अपने से उसको अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया है. तो यू माइट फील अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्टनेस इन योर लाइफ, थोड़ा हेडेक हो सकता है, फीवर भी आ सकता है, तो ये आप फील करोगे, थोड़ा सा आपको लगेगा. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. हम्म आई वॉज गोइंग थ्रू दिस हेक्टिक फेज. मेरी डॉटर की सर्जरीज हुई थी 2023 में एंड आई वॉज लुकिंग आफ्टर हर. मेंटली इमोशनली ड्रेन थी मैं बहुत ज़्यादा. although I meditate, so I think I was quite sane also. Yes. But it was very hectic time. So I was sane, but at the same time I was feeling it ki I am burdened right now, like emotional burden hai because I'm looking at her, she's in pain, and physical burden hai because I have to constantly be there for her. At that point I thought I should wear Rudraksh. Oh, okay. तो मुझे रुद्राक्ष दीक्षा में मिला था सदगुरु से. आई वुड से सदगुरु दीक्षा देते हैं रुद्राक्ष की एवरी महाशिवरात्रि पे. Okay. तो इन 2023 मैं उनके आश्रम गई थी महाशिवरात्रि के लिए, एंड दैट पॉइंट मैं रुद्राक्ष को लेके आई थी. कॉन्सिक्रेटेड होता है वो, सदगुरु कॉन्सिक्रेट करते हैं मिलियंस ऑफ रुद्राक्ष एंड यू गेट इट फॉर फ्री. एक्चुअली आप कहीं वो पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं, यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट. सो आपको आपके घर रुद्राक्ष आ जाएगा. Oh, nice. तो कॉन्सिक्रेटेड रुद्राक्ष पंचमुखी होता है वो. सो आई थॉट क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग कि मैं अपना पाठ कर रही हूँ, अपनी मेडिटेशन भी मैं कर रही हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग. मे बी एक वो इमोशनल सपोर्ट मुझे चाहिए था एंड आई वोर अ रुद्राक्ष. और आई रिमेंबर एट दैट पॉइंट इन द मिडल ऑफ दैट केओस में इतना मुझे जल्दी से फीवर ये सब नहीं होता बिकॉज आई मेडिटेट. तो मुझे नहीं होता कुछ भी. Okay, that's good. You are lucky. आई एम नॉट लकी, आई एम जस्ट इम्यून क्योंकि Yes. मेरा इम्यून स्ट्रॉन्ग है. व्हेन यू नहीं, मेडिटेट of course, it does. immunity It strong does, होता है it does, आपका. yes. तो मुझे नहीं होता ऐसे कोल्ड एंड फ्लू फीवर ये सब. एंड एट दैट पॉइंट हम उसकी काफ़ी ट्रीटमेंट के लिए, पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हम हॉस्पिटल जा रहे थे. आई गॉट सो सिक. See, I told you. एंड मुझे लग रहा था यार मैं आई एम डूइंग माई मेडिटेशन और मैं हेल्दी भी खा रही हूँ, मतलब आई एम टेकिंग माई हेल्दी, आई एम डूइंग ऑल ऑफ इट. तुलसी ले रही हूँ मैं, वाई. फिर मुझे लगा यही है कि मैं एवरीडे हॉस्पिटल आ रही हूँ एंड आई मस्ट हैव गॉट समथिंग. आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर एंड एट दैट पॉइंट ओनली मैंने अपना रुद्राक्ष पहना था There you go. फॉर द फर्स्ट टाइम. आई स्टिल हैव इट ऑन. Okay, that's good. हाँ No, ओके. no. So it does happen, and you do not need to get scared of it. That means the Rudraksh is for you. That is for you. That will help you in future, and you will see the change. And I'm sure you might have seen a lot of difference after wearing a Rudraksh. So it is definitely, it is a game changer for everyone. 100%. सो मुझे लगता है कि रुद्राक्ष इज काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव ऑरा. ये मेरे एक्सपीरियंस में है. एंड आपको जैसे बहुत प्रोटेक्टेड, स्पेशली मुझे जैसे मुझे नाइट से, डार्कनेस से मुझे काफ़ी डर लगता था पहले. इट रिसाइडेड, बट स्टिल कहीं ना कहीं मतलब कंफर्टेबल में नाइट के साथ कहो तो बहुत टाइम तक नहीं हुई. बट आई थिंक लास्ट 2 years में आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद नाइट फॉलिंग एज वेल कि इट्स ओके कि रात हो रही है. नहीं तो ना एक शाम के टाइम मुझे थोड़ा अनईजी सा होने लगता था. डर नहीं लग रहा है बट अनईजी फीलिंग होती थी. तो आई थिंक रुद्राक्ष डेफिनेटली हैज़ हेल्प्ड एंड इट हैज़ हेल्प मी विद आई थिंक मेरा ओवरऑल एक
पर्सनालिटी चेंज हुआ है रुद्राक्ष पहनने से. That's how I feel. There you go. कामनेस फॉर श्योर आई है yes, बहुत ज़्यादा. yes. चाहे वो इनिशियल टर्मोइल था कुछ टाइम का, especially with my health and a lot of emotions coming out at that point as well. मैं tired थी, जो भी था, but yeah. No, it So definitely is helps. Rudraksh for everybody? Yes, Rudraksh is a very good universal remedy. It is a stone, or you can call it a crystal or a bead, whatever you want to call it as. But Rudraksh is basically उसको रुद्राक्ष को ना बहुत सारी कहानियां आप सुनोगे रुद्राक्ष के लिए कि वो शिवा के टीयर्स होते हैं, एग्जैक्टली सदगुरु को ऐसे ही एग्जैक्टली हाँ बताते हैं. शिवा के टीयर्स होते हैं रुद्राक्ष. एंड रुद्राक्ष इतना प्योर स्टोन है ना, इतना एक वो बोलते हैं ना एक प्योरिटी, एक बहुत ही प्यारा सा एक बीड बोल दो आप रुद्राक्ष को, जो जिसके पास आता है इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स बिकॉज यू हैव गॉट द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा. आपको आ गई है ब्लेसिंग्स. एंड बहुत लोग हैं जो पहनना चाहते बट वो नहीं पहन पाते. एंड स्पेशली विद द मार्केट टुडे, यू नो, आप इतने फेक रुद्राक्ष देखोगे. सो आई थिंक यू आर वेरी लकी दैट यू गॉट a beautiful Rudraksh and you started your journey, Rudraksh journey. So it is very good. और वही है कि रुद्राक्ष बहुत अच्छा चीज़ है. हर टाइप का रुद्राक्ष आता है, हर चीज़ के लिए रुद्राक्ष होता है. जैसे स्पेशली फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम साढ़े साती और हु आर हैविंग इश्यूज विद शनि. बेसिकली शनि की अंतरदशा चल रही होती है, शनि की महादशा चल रही होती है. दे शुड वेयर अ 7-मुखी रुद्राक्ष. It will give amazing results. So रुद्राक्ष is definitely something जो मैं बोलूँगी कि सबको पहनना चाहिए. लेकिन with रुद्राक्ष the thing is कि रुद्राक्ष क्योंकि बहुत pure stones है तो थोड़े से उसके rules and regulations आ जाते हैं at times, तो इस वजह से लोग उसको avoid करते हैं. But it has got its own What value rules and regulations? हाँ. सो बेसिकली रुद्राक्ष क्योंकि वो एक शिव जी का बीड है, इतना प्योर है, तो इसलिए हम उसको ना कई बार ऐसा होता है जब नहीं पहनना होता है रुद्राक्ष. सो उसके बहुत थोड़े से वो मैं आपको बताती हूँ. जैसे अगर किसी के आप डेथ पे जा रहे हो, लास्ट राइट्स पे जा रहे हो, क्रिमेशन वाले जो होते हैं उसमें नहीं पहनते बिकॉज इट इज़ अ प्योर स्टोन. आप उसको वहाँ नहीं लेके जा सकते बिकॉज इट्स एन इम्प्योर एरिया दैट टाइम. सेकेंडली अगर कोई बेबी जब बॉर्न होता है तो अगेन इट इज़ उसको थोड़ा सा मतलब हम लोग के यहाँ ट्रेडिशनल्स में बोलते हैं कि वो थोड़ा इम्प्योर है, उतना प्योर नहीं बोलते हैं उसको. इट्स जस्ट कि इन्फेक्शन हो जाता है ना, जैसे हम बोलते हैं, तो तब नहीं पहनते. या फिर अगर आप नॉन वेज कंज्यूम कर रहे हो तो अगेन आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए. एंड लास्टली अगर आप ड्रिंक कंज्यूम करो तो भी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए. Really? Okay. So मैंने सदगुरु से बेसिकली ये सुना है कि यू कैन वेयर इट ऑल द टाइम. तो रुद्राक्ष का आई डोंट नो, बट सदगुरु सेज यू देयर इज नो सच टाइम कि आप उतारो उसको या Okay. ना पहनो. हाँ. यू कैन कीप इट ऑन. आई हैव बीन wearing it since. See, मतलब मैं उसको कंडीशन करने के लिए निकालती हूँ because every 6 months they say you should keep it in clean ghee it. and हाँ, cleanse it. दूध में हाँ, उसको आप डिप करके रखो कि वो उसकी कंडीशनिंग होती है. बट अब अपार्ट फ्रॉम दैट बट आई थिंक दैट कुड डिपेंड ऑल्सो कि आपने कितने मुखी वाला पहना हुआ है, किस पर्पज से पहना हुआ है. आई डोंट थिंक सो कि मुखी के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है. अगेन एज आई सेड, रुद्राक्ष जो है वो बहुत प्योर स्टोन है क्योंकि वो शिव जी का स्टोन है, इसलिए हम उसको बहुत ही वैसे रखते हैं. अब जैसे भगवान है, हम सबके घर में अपना भगवान होते हैं. रिलीजन, जिस भी रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, तो हम कभी भी नॉनवेज खा के वहाँ नहीं जाएंगे, उस एरिया में नहीं जाएंगे बिकॉज नॉनवेज एक तामसिक फूड होता है. इट्स नॉट सात्विक फूड. आप ड्रिंक करेंगे तो आप अपने गॉड के सामने ऐसे जाके आप भगवान के आगे नहीं ड्रिंक करेंगे, या जहाँ आपका मंदिर होगा या बाबा जी हैं वहाँ पे आप नहीं करोगे, आप वहाँ जाके ड्रिंक नहीं करोगे. तो ये आप ना बस एक वो रिस्पेक्ट पे कर रहे हो अपने रुद्राक्ष को. दैट्स इट. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा किसी ने कोई रूल लिख नहीं दिया है या ये किसी के रुद्राक्ष में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट कि कुछ हम लोगों ने जो अपने नॉर्म्स बना रखे हैं हमारे रिलीजन को लेके, हमारे मंदिर को लेके, या किसी भी रिलीजियस प्लेस को लेके, कि हाँ जैसे अब हम मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं तो हम शूज उतार के जाते हैं.
हम कभी भी शूज के साथ नहीं चले जाएंगे. Hmm. So that is our respect for our God. Rudraksh, okay. So Having said that, I don't drink, I don't eat non-veg, so एग्जैक्टली नहीं नहीं, तो वो बस नॉर्मल मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ रूल्स होते हैं जो आप कर सकते हो. अब ऑब्वियसली बात है, कई बार आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लेनी पड़ गई, ड्रिंक लेनी पड़ गई, सो यू कैन जस्ट वॉश योर रुद्राक्ष. कभी आपने रुद्राक्ष वॉश कर लिया, या अगर आपको पता ही है कि आपको जाना है कहीं पार्टी में जहाँ पे आपको ड्रिंक लेनी पड़ सकती है, या नॉनवेज खाना पड़ सकता है, कंज्यूम करना पड़ता है, या फॉर एग्जाम्पल किसी के लास्ट राइट्स पे जा रहे हो, जस्ट पुट योर रुद्राक्ष इन योर मंदिर और रिलीजियस जहाँ पे भी आपकी प्लेस, आप रख दो, टच करो एंड गो, कम बैक, टेक अ शावर, वेयर इट. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस ये है कि, और जैसे आप क्लेंस कर रहे हो ना अपने रुद्राक्ष को, सो दैट्स अगेन द सिमिलर थिंग कि आप विद कुछ दिनों में आप अपना रुद्राक्ष निकाल रहे हो, yeah, cleanse once कर in रहे हो. 6 months I do it. Yes, so that should be fine. Okay, nice. जब हमने रुद्राक्ष की बात करी है तो आई थिंक इट्स टाइम कि हम क्विकली टच बेस कर लेते हैं दूसरे स्टोन्स के ऊपर भी. तो क्या रेमेडीज़ में जब लोग स्टोन्स रेकमेंड करते हैं, जैसे पुखराज, जो गोल्डन येलो पुखराज होता है, वो बहुत रेकमेंड किया जाता है, या ग्रीन एमरल्ड जो होता है, रूबी भी कई लोगों को कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है, वुड से, एंड सो डज पर्ल. Yes. तो ये स्टोन्स वर्क करते हैं रेमेडी? Yes, 100% करते हैं. But as I said, ये definitely 100% gemstones work करते हैं. But I have to look at your charts before I can recommend a stone to you. So it is very important that we look into the charts to recommend the gemstone. We can't just say कि हाँ आप ये वाला stone पहन लो. What I mean to ask is, क्या स्टोन्स इतने पावरफुल होते हैं? जैसे मुझे मेरी कुंडली नहीं पता, बट मुझे बहुत मन करता है कि मुझे पर्ल पहनना है. आई जस्ट लव पर्ल्स, बहुत सुंदर लगते हैं मुझे. या मुझे एमरल्ड्स, ग्रीन एमरल्ड्स, आई लव देम, कि आई वांट टू वेयर इट. तो ऐसा है कि मुझे नहीं पहनना चाहिए, या कि अगर मैंने पहन लिया तो कुछ हो जाएगा, ऐसा? So basically क्या होता है, आप एक होता है आप ज्वेलरी पर्पस से पहन रहे हो, ठीक है. जैसे फॉर फीमेल स्पेशली इट्स ऑलवेज ज्वेलरी, एंड everyone loves their diamonds, their blue sapphires, green sapphires. So that is completely different. आप ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से पहन रहे हो तो आप पहन सकते हो, उसमें आपको अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट आप एस्ट्रोलॉजिकली पहनते हो, सो उसमें ये होता है कि आपका जो स्टोन है वो आपकी बॉडी पे टच होना चाहिए. आपका जो स्टोन है वो एक रत्ती का, एक कैरेट का होना चाहिए. वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस मेटल में पहन रहे हो. आइदर यू वेयर इट इन गोल्ड, सिल्वर, या फिर कुछ लोग कॉपर में पहनते हैं रिंग, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. देन वी हैव टू लुक इनटू योर चार्ट्स. मतलब ऐसी अगर जाके, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मेरे को एक कोई रिंग पसंद है एमरल्ड की, सो और मैंने ले ली, ऐसा कुछ तो नहीं है कि मुझे सूट नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता. बिकॉज देखो, जब आप रिंग लेते हो ना, तो द स्टोन इज नॉट टचिंग यू. Now if you मेजॉरिटी में यू डोंट, like now if you look at this ring, इसमें जो डायमंड है वो टच नहीं हो रहा है मेरे बॉडी के साथ. वो बस है, वो स्टोन की तरह है. लेकिन अगर कोई स्टोन है जो बॉडी को टच करता है, तभी वो आपको एज अ जेम स्टोन काम करता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ऐसा होता है. तो आप आराम से जाओ, शॉपिंग करो, आपको जो लेना आप लो, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता. ज्वेलरी से कोई दिक्कत नहीं है. इवन पर्ल्स की ज्वेलरी जो होती है, वो ज्वेलरी वाले पर्ल्स डिफरेंट होते हैं जो आप एस्ट्रोलॉजिकली पहन रहे हो. वो ये होता है कि आप मतलब ऑब्वियसली पर्ल्स आप पहन रहे हो तो आपकी बॉडी के साथ टच कर रहे हैं, बट आपने पूजा पाठ करी है, वो पर्ल्स को आपने बोला है कि भाई हाँ ये पर्ल मेरा इस फिंगर में, मैं इसलिए पहन रहा हूँ, देन ओनली इट विल हेल्प यू. बट ऐसा नहीं, ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी स्टोन्स पहन सकते हो. बस ऐसे टचिंग वाले स्टोन्स जो होते हैं वो ओनली फॉर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस होते हैं. राइट. Thank you so much, Ishita. I really enjoyed this one, like I enjoyed the last one as well. I think इसमें काफ़ी सारे टेक अवेज मिले हैं, और काफ़ी सारे मेरे मिथ्स भी जो मुझे लगता था कि मैं क्लियर नहीं थी, बहुत सारा कुछ मुझे क्लियर हुआ है आज. एंड आई थिंक हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी क्लियर हुआ होगा. बट वी वुड डेफिनेटली लाइक टू हैव अनदर सेशन विद यू, touching base on purely on gemstones and crystals, and because that's another बिल्कुल ही वो astrology की एक different branch है, and
अपने आप में काफ़ी बड़ा है, स्पेशली क्रिस्टल्स तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत फेमस भी हैं. So thank you so much for coming and taking time out, and I hope you can come back again. Definitely happy to be back, and I would love to come back. Thank you. No problem.